تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ حیکون المومن جبانا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ حیکون المومن بخیلا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ حیکون المومن کذابا قال لا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے، رسول کریم سے صحابہ نے پوچھا اے میرے پیغمبر یہ بتائیں کیا کوئی ایک آدمی سچا مسلمان ہو، پکا مسلمان ہو اور کمزور طبیعت کا ہو، بزدل خصلت کا مالک ہو، بہت بہادر نہ ہو، شجاع نہ ہو، کمزور طبیعتوں کا مالک ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے؟ نبی نے فرمایا نعم، ہاں میرے مقدس صحابہ ایسا ممکن ہے، ایک سچا مسلمان ہو، مومن کامل ہو، کمزور طبیعت کا مالک ہو۔ پھر پیغمبر سے دوسرا سوال صحابہ نے پوچھا ایکون المومن بخیلا، ہے میرے پیغمبر یہ بتا دیں کیا کوئی انسان مومن کامل ہو، پکا مسلمان ہو، کنجوس طبیعت کا ہو، بخیل ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نعم، ہاں میرے مقدس صحابہ یہ بھی ممکن ہے، کوئی سچا مسلمان ہو اور بخیل طبیعت کا ہو۔ ثم قیل یا رسول اللہ ایکون المومن کذابا، میرے پیغمبر یہ بتائیں کوئی انسان پکا مسلمان ہو اور جھوٹ بولتا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ نبی نے فرمایا لا، ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی سچا مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یا جو جھوٹ بولے وہ سچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا اِزْمَنُوا لِسِتَّم مَّن مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بھی تم بولو تو سچ بولو، سچ بولنے کی ضمانت دنیا میں لو، جنت دینے کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا اوفوا اِذَا عَاهَدتُّم، اے میرے امتیوں جب تم کوئی وعدہ کرو، جب تمہارا کسی سے کوئی وعدہ ہو جائے تو وعدے کو نبھایا کرو، وعدے کو ادا کیا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو۔ دنیا میں اگر تم ایسا کرتے رہو گے ضمانت لیتا ہوں، یہ میرے رسول فرماتے ہیں، یہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں۔ مگر مسلمانوں آج ہم میں کتنی کمزوری آ گئی ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں تو سچ بولنے سے کام نہیں لیتے، ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں، جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا، ہم وعدہ شکنی کیا کرتے ہیں، عہد کو توڑا کرتے ہیں۔ مگر جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس پیغمبر کے کلمے پڑھ کر تم نے دائرہ اسلام میں داخلہ کیا ہے، اس نبی کا حال کیا تھا، اس نبی کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن حسبہ رضی اللہ عنہ قال بایعت النبی علیہ الصلوۃ والسلام قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ فوعدته انا ان اتیہ بها فی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاثة ایام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد شققت علی انا وانا انتظرک من ثلاثة ایام۔ حضرت عبداللہ ابن حسمہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں لوگوں آمنہ کے لال سیدنا عبداللہ کے وعدہ پورا کرنے کا حال کیا تھا، عہد کا کتنا پکا معاملہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ابھی پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، بایعت النبی، نبی سے میں نے ایک طے کیا، خرید و فروخت کی، ایک اونٹ کا سودا کیا، اونٹ خریدا، خریدنے کے بعد فوعدتہ، میں نے اونٹ کی قیمت دی، جو اونٹ کا دام تھا میں نے رسول اللہ کے حوالے کیا، وبقیت لہ بقیۃ، مگر اس کے باوجود بھی کچھ دام میں، قیمت میں کچھ روپے، کچھ دینار و درہم کم پڑ گئے۔ میں نے وعدہ کیا یا رسول اللہ آپ اسی مکان میں ٹھہرے رہیں، کیا ٹھہرنے کا آپ وعدہ کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں، جاؤ عبداللہ ابن حسمہ، جاؤ میں یہی رکا ہوا ہوں، جب تک تم نہیں آؤ گے ٹھہرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن حسمہ وہاں سے لوٹ کے آئے، ماما بقیہ رقم لے جا کے دینے کے لیے گھر پہنچے، کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں فنسیتو فذکرتو بعد ثلاثة ایام، اے لوگوں گھر آنے کے بعد اپنے کام میں لگ گیا، رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا، ایک دن بعد نہیں،
2 दिन बाद नहीं, फज़कर तो बादा सलासत अय्याम, 3 दिन के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने मोहम्मद अरबी से कोई वादा किया था समन ले जाके देने के लिए, फुला जगह ठहरने के लिए हमने गुफ्तगू की थी। अब्दुल्ला इब्ने हसबा कहते हैं जब 3 दिन के बाद मुझे ख्याल आया, मेरे ज़हन में बात आई, फौरन समझ लिया, उस जगह पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे नबी जहां ठहरने का वादा किए हुए थे 3 दिन से वही मौजूद थे, वही मौजूद है। सिर्फ जब नबी की नजर पड़ी तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, लक़द शक़क़त अलैया अना मुंज़ु सलासे अय्यामिन अंतज़िरुका। अब्दुल्ला इब्ने हसमा तुमने मुझे तकलीफ पहुंचा दी, मुशक्कत में डाल दिया, मैं 3 दिन से तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने वादा किया था ठहरने का, ये मेरे नबी का वादा था, ये मुस्तफा के अहद को पूरा करने का मामला था। इसीलिए नबी ने फरमाया, औफू इज़ा अहदतुम, ए मेरे उम्मतियों, दुनिया में वादा पूरा करने की तुम जमानत ले लो, मैं जन्नत देने की जमानत। सुभान अल्लाह। फिर तीसरी बात नबी ने फरमाया, अद्दू इज़ा तुबिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानतें रखी जाए, कोई चीज अमानत के तौर पर कुछ रख जाए, मसलन 500 की नोट मैंने किसी एक आदमी को दिया, देने के बाद मैंने कहा ये आपके पास अमानत के तौर पर रखता हूँ, जब मैं चाहूंगा तो आपसे ले लूंगा। हजरात 500 की नोट उसके पास अमानत की है, मैं रात में या दिन के किसी हिस्से में जब चाहूं मैं मुतालबा कर सकता हूं। अगर उस अमानत रखने वाले ने उस 500 नोट की जगह दूसरी 500 की नोट दिया तो भी अमानत पे खयानत हो गई। उन नोटों को 500 रुपए में 100 के रुपयों नोटों से बदल दिया तब भी खयानत हो गई। मुख्तसर यह है, जो नोट दी जाए बेनई वही वापस की जाए तब तो अमानत होगी, अमानत की अदायगी होगी, वरना खयानत हो जाएगी। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, अद्दू इज़ा तुबिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानतें रखी जाएं तो अमानतों को अदा कर दिया करो, अदा करने की जमानत लो, गारंटी दुनिया में ले लो, मैं जन्नत देने की जमानत लेता हूँ। इस दौरे फितन में मैं किसको मिसाल में पेश करूं, किस आदमी को नजीर में लाऊं कि जब वादा करता है तो वादे को पूरा करता है, जब गुफ्तगू करता है तो सच बोलता है, जब अमानतें रखी जाती हैं तो अमानतों को अदा किया करता है। मगर इस हदीस के पस मंजर को समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के दौर का एक वाकया, एक रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। दरूद पाक पढ़िए तो मैं इस रिवायत को आपके हवाले करूँ। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हैं जिनका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। हजरात उमर जिनकी शख्सियत अजीम शख्सियत थी, नबी ने जिनके ताल्लुक से फरमाया था, लौ कान बादी नबीउन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। उस उमर का जमाना है। उमर मदीना शरीफ के मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हैं। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में मामलात पेश होते हैं, आप फैसला फरमाते जाते हैं। अदल फारूकी मशहूर है। इन दूसरी कौमें भी इमाम फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ को मिसालों में पेश किया करती हैं। लिहाजा फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लोग दो नौजवान एक जवान आदमी को पकड़ के लेके आए। आने के बाद अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपकी बारगाह में इस जवान को लेके आए हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, ये हमारे बाप का कातिल है, इसने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है, हमारे बाप ने इसकी ईज़ाओं से, इसके तकलीफ देने से जिंदगी से महरूम हो गया है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जवान से फरमाया कि ये जवान, इन दोनों दावा करने वाले नौजवानों का दावा तो तूने सुन लिया, क्या तूने वाकई इसके बाप को कत्ल कर दिया, इनके बाप को कत्ल कर दिया है? वो जवान खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, मुसलमानों के मुताल्लिक मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है, उस दुख तुम, ए मेरे उम्मतियों, जब बोलो तो सच बोला करो, लिहाजा मैं झूठ नहीं बोल सकता।
यकीनन मैं इसके बाप का कातिल हूँ, मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया है। मामला यह है अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक ऊंट था जिससे मैं बहुत मोहब्बत किया करता था, मैं जान की तरह अपने उस ऊंट को अजीज रखा करता था। एक दिन मेरा ऊंट इसके बाप के बाग में चला गया और इसके बाप ने एक पत्थर उठाकर मेरे ऊंट को रसीद किया। तो कहा नालायक, नादान, पगले, 2 बार में तूने ये तनी तरक्की किया और तरक्की किया और सीने से अब माथे पे हाथ आ गया, माथे पे हाथ आ गया। आपने सुना होगा कि एक बार यहाँ बहुत जबरदस्त घाटा लगा था। समझ रहे हो कि नहीं? लगा था कि नहीं? मैंने पढ़ा 50,000 का मजमा, 1 लाख का मजमा। मैंने कहा अपने तस्बीह के हिलाकर किसी एक का दिल हिलाया तो पता चला एकदम गायब, है ना? अरे ये 50,000 1 लाख मिल करके तस्बीह हिलाते मर गए, एक का दिल न हिला सके और गरीब नवाज ने अपनी तस्बीह हिला दिया तो अजमेर की धरती हिलने लगी, अजमेर की धरती जगमगाने। तस्बीह हिला दे धरती, है ना? गरीब नवाज है। मैंने कहा सरकार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान में भेजा, अजमेर की धरती पर आप आ गए। आकर के आपने क्या किया? कहा आका ने फरमाया था हिंदुस्तान जाओ। मैंने पूछा था जा करके क्या करूंगा? तो मेरे रसूल ने फरमाया था मोइनुद्दीन, तुझे हिंदुस्तान जाना है और इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को फैलाना है। मैंने कहा सरकार, आपने इस्लाम कैसे फैलाया? डगर डगर चल के, नगर नगर चल के, शहर शहर चल के, करिया करिया चल के, देहात देहात चल के, घर घर चल के, गली गली में चल के आपने इस्लाम कैसे फैलाया? तो गरीब नवाज ने कहा अरे मैं कहीं नहीं गया, न उत्तर गया, न दक्षिण गया, न पूरब गया, न पश्चिम गया, न किसी के घर गया, न नगर गया, न डगर गया, न गली कूचों में गया। मैंने कहा इस्लाम कैसे फैल गया? कहा टूटी हुई चटाई पर बैठ गया, तस्बीह हिलाता रहा, लोग आते रहे और मुझको देखते रहे और जब मजमा कसीर हो गया और मजमे पे एक नजर डाल दिया, एक ही नजर में 90 लाख को कलमा पढ़ा डाला और इस्लाम को फैला। देखा आपने, एक ही नगर में गरीब नवाज अजमेर की धरती पर बैठे हैं। इन बेवकूफों से पूछो, है ना, इनके तस्बीह में दम है? गरीब नवाज की तस्बीह तो देखो, टूटी हुई चटाई है, हाथ में तस्बीह है, उधर धरती हिल रही है, धरती हिल रही है। तस्बीह चले तो धरती हिले, तस्बीह रुक जाए तो धरती रुक जाए। अब जब धरती हिलने लगी तो मेरे दोस्तों धीरे धीरे राजा का महल भी हिलने लगा। और जब राजा का महल हिलने लगा तो राजा घबराया, कहा पता लगाओ ये जलजला कहाँ से आया? तो कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई शुमाल की तरफ, कोई जुनूब की तरफ, कोई मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ दौड़ दौड़ के पता लगा रहे हैं। और पता लगाते लगाते जब गरीब नवाज के करीब पहुंचे तो गरीब नवाज ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन? तो कहा जी हुजूर। कहा देखो पता लगाने वाले आ गए, कहो तो हिला दें, कहो तो रोक दें, है ना? कहा सरकार थोड़ी देर के लिए तस्बीह रोक दीजिए। तस्बीह का हिलना बंद हुआ, धरती का हिलना बंद हुआ। अब ये लोग सब देखने लगे और जब कुछ नहीं हो रहा है, धरती का हिलना भी बंद हो गया तो कहा यार बाबा भी कुछ नहीं कर रहा है, चलो खैरियत हो गई। अब राजा का महल भी ठहर गया होगा, धरती भी ठहर गई, यहाँ का जर्रा जर्रा ठहर गया, यहाँ का कतरा
खतरा ठहर गया, अब कोई चीज हिल नहीं रही है, सब लोग वापस हुए। मगर एक बहुत बड़ा चालाक था, क्योंकि हर जमात में कुछ ना कुछ चालाक होते हैं। सिरहाने की लकड़ी पैताने, पैताने की लकड़ी सिरहाने, हत्ता कि मियाँ बीबी में भी बंटवारा करा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक चालाक था मेरे दोस्तों, सोचने लगा कि तुम लोग जा रहे हो, लेकिन मैं देखूंगा अभी ये बाबा कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है बाद में कुछ करे। वो सब वापस मुड़े, ये पेड़ के आड़ में खड़ा रहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन। कहा, जी हुजूर। कहा, सब तो चले गए मगर चालकवा ठहरा हुआ है, कहो तो हिला दे, कहो तो हिला दे। कहा, सरकार हिला दीजिए। आपने कहा, सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जैसे तस्बीह हिलने लगी वैसे धरती हिलने लगी। अब इस चालाक ने कहा, ओहो, पता लग गया, यही बाबा धरतिया को हिलाता है, ये बाबा धरती को हिलाता है। दौड़ा दौड़ा गया, राजा से पूछा, राजा से कहा, राजा। कहा, हाँ। कहा, ये खाजा आया है, खाजा। कहा, तब? कहा, वो तस्बीह जब हिलाता है तो धरती हिलती है। कहा, अच्छा ये बताओ, धीरे धीरे हिला रहा है कि जोर से, है ना? तो कहा, बड़ा धीरे धीरे हिला रहा है। तो कहा, रे गजब हो गया, जाओ पकड़ लाओ, कहीं से झटके से हिला देगा तो दिल ही हिल जाएगा, है ना? जाओ पकड़ के जल्दी लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दर्जन के दर्जन उठे। और जिसने खबर दिया था, कहा, राजा। कहा, इतने लोगों को भेजने की क्या जरूरत है? कहा, अरे सब जाएंगे, पकड़ के लाएंगे। मैं देख करके आया हूँ, खाजा बड़ा नहीफ नज़ार है, बड़ा कमजोर है, हड्डी का ढांचा है ना? मैं अकेले लेके आऊंगा।